Hello everyone. Today we will start with the new chapter that is theory base of accounting. As you have learnt in the previous chapter while defining accounting that accounting is a process which is carried on the basis of rules and principles framed by accountancy. And each step in the process of accounting generates accounting informations. And accounting is considered as a language of business, which helps in communicating these informations to users, that is owners, investors, creditors, employees, banks, government, etc. And these accounting informations are useful to users if informations are understandable, comparable, uniform and consistent. सो ये इंफॉर्मेशंस अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल कैसे बनाई जा सकती है, ये सब कैसे हो पाएगा, इसके लिए हमें फिर कुछ गाइडलाइंस, रूल्स, प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस को यूनिफॉर्म बना सके. एंड दीज प्रिंसिपल्स आर नोन एज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. और अगर हम इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग, फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी. थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, concepts, rules, and guidelines developed to bring uniformity. The main purpose of theory base of accounting or accounting principles is to bring uniformity and consistency to the process of accounting. Uniformity means कि अगर business A account बनाए या B या C, ये तीन enterprises हैं, ये जो अकाउंट बना रहे हैं, ये जो बना रहे हैं, ये जो बना रहे हैं, दे शुड बी यूनिफॉर्म सो दैट वी कैन कंपेयर दीज थ्री बिजनेस. और कंसिस्टेंसी का मीनिंग है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो एक बार फॉलो की गई हैं दैट शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर. मतलब ये फर्स्ट ईयर है, इसमें जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की गई हैं वही हमारी सेम रहनी चाहिए सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में एंड सो ऑन. So bring uniformity in accounting and consistency in accounting process. We have to follow some principles, concepts, rules and guidelines. So accounting principles है क्या? Accounting principles are the rules or norms. Rules or norms adopted by the accountants universally while recording accounting transactions. Adopted by the accountants while recording accounting transactions. और इन rules and norms की features क्या हैं? First one is these rules are man made. ये जो rules हैं, ये जो principles हैं, these are man made. That means these principles are best possible suggestions based on practical experiences. ये हम लोगों ने बनाए, ये कोई आसमान से नहीं आए, ये हम लोगों ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से बनाए हैं और ये हर तरह के एंटरप्राइजेस को फॉलो करने टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी. सो दीज आर मैन मेड. सेकेंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो फीचर है वो है फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स कि नॉट रिजिड. ये रिजिड नहीं है, परमानेंट नहीं है, टाइम के साथ हम इनको चेंज कर सकते हैं. Within a change in business environment, within change in time, इनको change कर सकते हैं. And the third feature of accounting principle is generally accepted. Generally accepted क्योंकि ये principle basis हैं, guidelines हैं accounting process के लिए, और इन rules में relevance, objectivity और feasibility पाई जाती है
इसलिए ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये जनरली एक्सेप्टेबल है। तो अब बात करते हैं इन जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, इसकी नेसेसिटी की। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, certain accounting principles have been accepted by accountants all over the world. These are worldwide acceptable. इसीलिए इसे कहा गया जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कैटेगराइज करेंगे। So these rules and guidelines used in preparing accounting reports are termed as generally acceptable accounting principle, that is GAAP. और अब हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरीज में, एंड दीज आर कैटेगराइज्ड एज concepts and conventions. Concept means basic, fundamental accounting assumptions, जो बेस है हमारी अकाउंटिंग का, जिसको हमने फॉलो करना ही करना है। फंडामेंटल assumptions, अज्यूम करके चलेंगे तभी हम अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू कर पाएंगे। Whereas accounting conventions are outcome of accounting practices. अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस करते करते जो इसके आउटकम्स आए हैं, जो ट्रेडिशंस चलते आए हैं, इनको हम ट्रेडिशंस भी कहते हैं। कन्वेंशंस मीन्स ट्रेडिशंस, सो इनको हम ट्रेडिशंस कहते आए हैं। जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस चलती आ रही हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में, उनको फॉलो करना होता है। सो दीज आर आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट 3 ये है हमारी फंडामेंटल assumptions, और ये बाकी हैं अदर concepts. So these are total 14, 3 plus 11. First 3 are fundamental assumptions on which accounting based, and remaining 11 are other accounting principles. First accounting concept is going concern. So according to this concept, it is assumed that business will last for a long time. It is assumed that business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business. No intention to close the business. और इसी assumption के बेस पर हम distinction करते हैं fixed assets और current assets में, capital expenditure and revenue expenditure में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है द बेनिफिट ऑफ विच इज फॉर लॉन्ग पीरियड, एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग है जिसको हमने सेम ईयर में एक ही साल के अंदर कंज्यूम करना है। फिक्स्ड एसेट्स को इसी अजम्पशन के बेस पर कॉस्ट पर, यही अजम्पशन है गोइंग कंसर्न, इसी अजम्पशन के बेस पर फिक्स्ड एसेट्स को हम लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पर। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक मशीन है, ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाएगा। एक मशीन 1 लाख रुपीस की है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख पर, और इसकी अगर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, तो टोटल कॉस्ट को हम डेप्रीशिएट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख जो लिया है डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 10,000 पर एनम डेप्रीसिएशन चार्ज किया जाएगा अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड लेके चलते हैं। ये मैंने जो बोला स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम आगे किसी और कंसेप्ट में एक्सप्लेन भी करेंगे। सो 10,000 डेप्रीसिएशन पर ईयर चार्ज किया जाएगा। सो based on this concept we are charging depreciation on fixed assets every year. एक ही साल में 1 लाख एसेट को एज एन एक्सपेंस या कॉस्ट शो करने की बजाय इसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको हम चार्ज करेंगे उस पीरियड की रेवेन्यू से जिस पीरियड में इसको यूज किया गया। अगर हम 10 इयर्स यूज करते हैं तो 10 साल तक
total cost of machine जो है that will be treated as an expense and not in the year of purchase itself. So going concern concept जब हमने मान लिया कि business हमारा endless है, there is no intention to close the business, तभी हम assume करेंगे कि asset जो है वो 10 साल चलेगी. और अगर ये going concern ना हो तो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद ये बिजनेस बंद होने वाला है, तो ना तो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, सारे क्या माने जाएंगे, रेवेन्यू, और ना ही कोई फिक्स्ड एसेट होगी, सारी की सारी एक ही साल में या विद इन 2-3 मंथ्स उनको हमें शो करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा टोटल कॉस्ट को उस एसेट की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. सो इट इज अज्यूम दैट business shall continue for a foreseeable period and there is no intention to close the business. Now the next accounting concept is accrual concept. Under this assumption, a transaction, कोई भी लेन देन, is recorded in the books of accounts when it is entered into, not when settlement takes place. Transactions are recorded when they are entered into, whether amount is exchanged or not, whether the transaction is settled or not. Revenue is recognized when it is realized, whether received or not. Expenses are recognized in the accounting period in which the revenue related to it is recognized, whether paid or not. Whether paid or not. So for example, if we want to calculate correct profit and loss and also show true financial position of business, अगर हम एक accounting period 12 months का लेके चल रहे हैं, starting from 1st April to 31st March, तो accrual concept क्या कहता है, इस period के सारे expenses आपने लेने हैं, whether paid or not. इसको हम कहेंगे accrued expenses. If expenses incurred but not paid. और accrued revenue means revenue earned but not received. So क्या एग्जाम्पल है इसकी, अगर हमारा बिजनेस किराए की दुकान में चल रहा है तो उसका रेंट 12 मंथ्स का बनता है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 पर मंथ है तो 60,000 पर एनम या 5,000 पर मंथ, और हमने अभी सिर्फ 50,000 पेड है, दैट मीन्स पेड फॉर 10 मंथ्स. 2 मंथ्स का क्या है, आउटस्टैंडिंग पेएबल, तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इट इज एंटर्ड इन टू, हमारा 31st मार्च एट द एंड ऑफ द ईयर 12 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं, वेदर दिस रेंट इज पेड और नॉट. तो सेटलमेंट डेट नहीं देखनी, वेदर पेड और नॉट नहीं देखना, क्या देखना है कि वो 12 महीने का इंकर्ड हो गया तो हमें उसको एंटर करना है. थर्ड बेसिक अजम्पशन जो है, फंडामेंटल अजम्पशन जो है वो है कंसिस्टेंसी. सो कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है जो बार बार चेंज ना हो, जो सेम कंटिन्यू करेगी, कंटिन्यूटी जिसमें बनी रहे, स्टेडीनेस जिसमें बनी रहे. सो कंटिन्यूटी और स्टेडीनेस. The accounting information provided by the financial statements would be useful. कब होंगी useful? Only when it allows comparison. And comparison is possible only when accounting policies and practices followed are uniform and consistent. Same चल रही है. So यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है आपको मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की, जो आपके 11th के सिलेबस में भी है आगे जाके. सो डेप्रिसिएशन का पहले तो मीनिंग फॉल इन द प्राइस ऑफ, फॉल इन द कॉस्ट ऑफ और वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट. क्यों किसी एसेट की वैल्यू कम होती है? ड्यू टू यूज, ड्यू टू वेयर एंड टेयर और ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम. इस एक्सपेंस को, डेप्रिसिएशन को आपके सिलेबस में चार्ज करने के दो मेथड्स हैं. एक है SLM दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड अनदर वन इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. तो ये अजम्पशन क्या कहती है कि ये फर्स्ट ईयर है, आपने अपनी मशीनरी पे
डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ऑन द बेसिस ऑफ SLM, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सेकेंड ईयर में इस मेथड को चेंज नहीं करना, सेम फॉलो करना है SLM। थर्ड ईयर भी सेम फॉलो करना है स्ट्रेट लाइन मेथड, फोर्थ ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर आप इसको बार बार चेंज करोगे तो आप अपने एक साल के प्रॉफिट को या फाइनेंशियल पोजीशन को दूसरे साल की फाइनेंशियल पोजीशन से कंपेयर नहीं कर पाओगे। सो अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, जो प्रैक्टिस आपने फॉलो की है, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपने एक साल में फॉलो की है, दैट शुड बी यूनिफॉर्म, अगले सालों में भी सेम चलनी चाहिए एंड कंसिस्टेंट, उसको बार बार चेंज नहीं करना। हाँ, अगर लॉ कहता है, अगर कोई रूल बन जाता है, अगर गवर्नमेंट कोई कानून पास कर देती है तो देन वी विल चेंज इट, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं तो हम इसको चेंज करेंगे, अदरवाइज दैट विल बी फॉलोड सेम ईयर टू ईयर एंड कंटिन्यूटी रखनी है, स्टडीनेस रखनी है। आफ्टर दीज थ्री फंडामेंटल assumptions, नेक्स्ट अकाउंटिंग principle is business entity concept. This concept assumes that entity of business is different from its owners. It means owner is different entity and business is different entity. Or due to this accounting principle, whenever owner invests in business, for example इस owner ने इस business में 10 crores इन्वेस्ट किए, तो हम इसको क्या मानते हैं, कैपिटल। एंड दिस इज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ऑनर, because owner is a separate entity and business is a separate entity. Business is treated as a separate unit and entity separate from the person who controls or who owns it. Now the next accounting principle is money measurement. According to this principle, only those transactions and events can be recorded in the books of accounts which can be measured in money terms. For example, एक बिजनेस के पास फैक्ट्री है 2 एकड़ लैंड में, हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक बिजनेस के पास स्टॉक पड़ा है 100 बॉक्सेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसको हम अपनी अकाउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट अगर हम इसी लैंड और इसी स्टॉक को मॉनेटरी टर्म्स में शो करते हैं कि बिल्डिंग है 50 लाख की, स्टॉक है 50,000 का, देन वी कैन रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स. So ultimately this principle assumes that only those transactions and events are recorded that can be measured in money. हमारा मैनेजर 50,000 पर मंथ सैलरी लेता है, तो his salary can be recorded in the books of accounts. हमारा मैनेजर बहुत ही ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग है, इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग पीरियड। हमने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में देखा है कि बिजनेस इज गोइंग ऑन फॉर फोरसीएबल लाइफ, तो ये जो हम अज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस चलता ही रहेगा 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कोई लिमिट नहीं है उसकी, इट इज अ गोइंग कंसर्न। तो इतने पूरी लाइफ के लिए कोई भी बिजनेसमैन ये वेट नहीं कर सकता कि आफ्टर क्लोजिंग डाउन द बिजनेस हम उस बिजनेस के प्रॉफिट लॉसेस या फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाएं। तो इस पर्पस के लिए द होल लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू द पीरियड ऑफ वेरियस इंटरवल्स, फॉर विच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड and balance sheet will be prepared to know the financial position of the business. और इस इंटरवल को बोला जाएगा अकाउंटिंग पीरियड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द every accounting period, and this accounting period is of 12 months, and it will be starting from 1st April and ends on 31st March. जैसे 1st April 2021 तो 31st March 2022. सो हम जो अज्यूम करके चल रहे थे कि गोइंग कंसर्न है तो कितने साल चलेगा, उस बेस पे
हम उसकी लाइफ ऑफ द बिजनेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स ऑफ 12 months known as accounting period, so that performance of business is measured at regular intervals. Next accounting principle is cost concept. Cost concept is also known as historical cost concept. This principle assumes that all assets of business are to be recorded in the books at the cost. कौन सी cost? जो उस एसेट को एक्वायर करने में, खरीदने में लगी. द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसमें क्या क्या आता है? कॉस्ट ऑफ परचेज, expenses incurred for bringing them to the location as well as installation expenses. For example, हम एक मशीन को 5 लाख में खरीदते हैं तो that is cost of purchased. उसको बिजनेस तक लाने में जो हमने पेमेंट की है, अगर वो 5000 है वो प्लस हो जाएगी. फिर 20,000 उसको इंस्टॉल करने में लग गए तो वो भी प्लस हो जाएगी. एंड द टोटल कॉस्ट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इस कॉस्ट पे हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आने वाले टाइम में ईयर आफ्टर ईयर उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू होती जाए, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, वी विल रिकॉर्ड इट एट द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. इसका मतलब ये नहीं है कि हर साल ये कॉस्ट सेम ही रहेगी. कॉस्ट वही है बट इट विल बी रिड्यूस्ड बाय द डिक्रीज इन द वैल्यू, जिसको हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. एंड दैट टर्म इज नोन एज depreciation. With the time, value of asset decreased, and that is known as depreciation. It means 5 lakh की asset जो है वो फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगी 5 लाख पर. सेकेंड ईयर अगर उस पे 50,000 डेप्रिसिएशन लग जाता है तो लेस करेंगे 50,000 एंड इट विल बी शोन एट बुक वैल्यू 4,50,000. इसको हम क्या बोलेंगे? बुक वैल्यू. बुक वैल्यू मीन्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस डेप्रिसिएशन पर एसेट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा. ये नहीं देखा जाएगा कि ये एसेट की टाइम के साथ मार्केट वैल्यू चेंज हो चुकी है. मार्केट वैल्यू को कंसिडर नहीं किया जाता, ओनली हिस्टोरिकल कॉस्ट और कॉस्ट. So next accounting principle is dual aspect. According to this concept, every transaction has two aspects. If on the one side we are receiving something, on another side we are giving something. If one account is debited, automatically another account is credited, क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं. So for example, capital introduced. Mr. A started business with capital rupees 10 lakh. तो ये जो 10 लाख रुपीस हैं, एक तरफ कैश अकाउंट आएगा और दूसरी तरफ कैपिटल अकाउंट आएगा. कैश अकाउंट इज आवर एसेट एंड कैपिटल अकाउंट इज लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स ओनर. So every transaction has two aspects, debit and credit of equal amounts. Next accounting principle is matching concept. Matching concept means revenue of a period should be matched with expenses during that period. Should be matched with, so expenses incurred and revenue of one period should be matched. So an expense is recognized not when cash is paid. ये हम पहले भी कर चुके हैं accrual concept में. When it is incurred, expense is assumed. Revenue, when it is earned, it is assumed whether received or not. To calculate the actual profit, to ascertain profit or loss, we have to match revenues and expenses of a certain period. And if revenue more than expense, it will be profit, and if expense is more than revenue, it is loss. So matching concept assume that expenses of an accounting period should be matched with revenues of that period.
So next accounting principle is full disclosure. Disclosure of all those items should be made which are required under law or which are material. This accounting statement, ये जो full disclosure है, ये क्या कहती है कि whenever we prepare books of accounts, तो अपनी financial position को जिन लोगों को ये इंफॉर्मेशन चाहिए उनको प्रॉपर बताने के लिए वी शुड कंटेन ऑल रेलेवेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन जो बैलेंस शीट के अंदर तो रिकॉर्ड नहीं हो सकती उनको भी हमें एज ए फुट नोट शो करना है. फॉर एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ एन एम्प्लॉई इन ए पर्टिकुलर ईयर मे बी डिस्क्लोज थ्रू फुट नोट. एनी contingent liability, that liability which may or may not be paid, that also be shown as footnote. So anything which is material or which is required under law should be fully disclosed in financial statements of a business. Next accounting principle is conservatism, which is also known as prudence. That means समझदारी किसमें है. This principle is also called prudence because it states that anticipated profits are not to be considered but provide only possible losses. Anticipate no profit. Profit को पहले से assume करके नहीं चलना, अंदाजा लगा के नहीं चलना, चाहे आपको आने वाले टाइम में कितना भी प्रॉफिट होने वाला है, आपको श्योर है कि आप इतना प्रॉफिट अर्न कर लोगे, बट उसको एंटीसिपेट नहीं करना. बट अगर आने वाले टाइम में कोई भी लॉस होने वाला है तो उसको पहले से ही अज्यूम करना है, उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन तैयार करना है. प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस. फॉर एग्जाम्पल, provision for doubtful debtors. Doubtful debtors are those debtors which may or may not pay. सो उनके लिए ऑलरेडी प्रोविजन तैयार करना है. आपके डेटर्स हैं 10 लाख के, आपको डाउट है 2% लोग पेमेंट नहीं करेंगे, सो इसके लिए आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तैयार करना है. 10 लाख का 2% अज्यूम करके चलना है किसी भी लॉस को. सो एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर ऑल लॉसेस, इसी में प्रूडेंस है. ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज मटीरियलिटी. मटीरियलिटी अगेन उसी बात पे फुल डिस्क्लोजर से थोड़ा सा मैच करता है कि हमें वो सारी आइटम्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करनी है जो कि मटीरियल है, जो कि रेलेवेंट है. और अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी आइटम हमारे बिजनेस के लिए मटीरियल है? ये डिपेंड करता है कि अगर वो आइटम हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे अफेक्ट डालती है तो वो है हमारे लिए मटेरियल. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इनसिग्निफिकेंट एंड इमटेरियल फैक्ट्स को रिकॉर्ड करने की या डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ पेन्स, पेंसिल, पेपर, ये स्केल्स एटसेट्रा, या जिसको हम स्टेशनरी बोलते हैं, ये हमारे बिजनेस की एक एसेट तो है, लेकिन अगर ये ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती, अगर इसको हम एज एसेट शो नहीं करना चाहते, तो एटलीस्ट इट शुड बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस whether consumed or not. Materiality means material informations should be disclosed. Any item is material if it influences the decision of the user. An item may be material for one business that may not be material for another business. Next principle is objectivity. Objectivity means any information या any item which is recorded in the books of accounts, any accounting data which is recorded in the books of accounts should be verifiable and dependable. मतलब उनका कोई एविडेंस या कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए. सो कोई भी आइटम जब हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है तो उसका एविडेंस क्या होता है? बिल्स, vouchers, invoices, checks, etc.
In other words, any financial information should be neutral and free from bias. Bias कोई नहीं लेनी. It should be properly based on evidence. Transactions are recorded on the basis of evidence. And these evidence are bills, invoices, vouchers, etc. In the last 14th accounting principle is revenue recognition. This principle is totally based on just like fundamental assumption accrual. And according to this, revenue is recognized when the right to receive is established. So this was all about accounting concepts. Do watch the next video for accounting standards, basis of accounting and GST.